ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਉਸਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਲੂਟ ਦਾ ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਹਿਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ मैं स्वागत करदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे दिल के बिल्कुल अंदर से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, बिकॉज आपका शो हम देखते आए हैं पिछले कुछ महीनों से, और आपके जितने भी शो हुए हैं बहुत प्रभावशाली रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे। सो ਸਾਹਿਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? संदीप जी, बात ऐसी है कि इतिहास गवाह रहा है इस चीज़ का कि जब जब किसी भी व्यक्ति ने समाज में कोई अच्छा काम करने का प्रयास किया, अच्छा काम इन द सेंस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए नहीं, समाज के ऊपर उठ के पूरे विश्व के लिए, विश्व के उन तत्वों के लिए जो हमें, सारे जानवरों को, सारे इंसानों को और विश्व को संभाले रखे हुए हैं, जो तत्व हवा, पानी, धरती, वृक्ष, उन सब के ऊपर जो काम कर रहा है वो व्यक्ति आज आपके सामने बैठा हुआ है। और उस व्यक्ति को तो स्पेशली लोग समझते नहीं है, बिकॉज लोगों ने पिछले कुछ सालों से अपना नाता तोड़ दिया है प्रकृति के साथ। प्रकृति से बहुत दूर हो चुके हैं लोग, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टीज के पीछे इतना दूर हो चुके हैं कि आज जो व्यक्ति एक पेड़ लगाने जाएगा ना, वो एक पेड़ की इतनी फोटोज पोस्ट करेगा कि मैंने एक पेड़ लगाया, मैंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली इस समाज की। आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमको पेड़ लगाने पड़ रहे हैं। आज वातावरण ऐसा बन चुका है। अब इसका कसूरवार आप दिवाली को कह दो, गुरुपुरब को कह दो, या पराली को कह दो, इंडस्ट्रियल आपका पोल्यूशन है, या व्हीकुलर पोल्यूशन है, इसको कह दो। आज इन सब के कारण हम लोग अंधे हो चुके हैं, और हम समाज अंधा रहा है वैसे शुरू से। आपको सच बोलूं तो इग्नोरेंस ऐसी भरी हमारे अंदर, ऐसे अंधे हैं हम इंसान कि सब कुछ देखते हुए भी 2000 तक AQI पहुंच गया, सब कुछ देखते हुए भी फिर भी हम आराम से चुप बैठे हैं और पैसे के पीछे भागते जा रहे हैं। किसी का पैसा काम नहीं आना कहीं पे। सो बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे को ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। अच्छा, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जी ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ जी ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि कोई खबर लगती है कि साहिल शर्मा ने किया इस व्यक्ति को ब्लैकमेल, घर के बाहर जाकर पेड़ काट रहा था, उसको रोका, पेड़ पर कोई कील लगा रहा था उसको रोक दिया, कोई पेड़ पर ये हमें बल्लभ नहीं टांगने देता, ये हमें ये नहीं करने देता, ये हमें छटाई नहीं करने देता। बहुत प्रॉब्लम्स, चाहे वो बिजली बोर्ड है, चाहे वो नगर कौंसल ਦੀ ਨਾਕੀ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ जी। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? वीगन, ਵੀਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ शुद्ध ਨਾ? शाकाहारी, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? अहिंसावादी। ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੈ ਨਾ?
ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੇੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੇੜ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है? संदीप जी, आज से बिल्कुल 5 साल पहले 2019 में जब मैंने अपना बैचलर शुरू किया था, बैचलर्स डिग्री शुरू किया था, मैं कॉलेज में था उस वक्त। और उस वक्त मैंने पहली बार एक वीडियो देखा था एक पति पत्नी का, उन्होंने समझाया था वीडियो के माध्यम से। और ये नहीं कि मैं सिर्फ वीडियो देख के चेंज किया, वीडियो देख के फैक्ट समझे। उन्होंने वीडियो में ये बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। 2000 अराउंड 1980 से इसके बारे में बात की जा रही है। साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं। बिकॉज मैंने खुद वैज्ञानिक बनना था बायोलॉजी फील्ड में या किसी वाइल्ड लाइफ फील्ड में, लेकिन चलो घर वालों की सपोर्ट कभी मिली नहीं। पर चलो घर वालों की सपोर्ट कभी उस चीज़ में मिली नहीं, वो समझ नहीं पाए मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन। तो हमने जैसा उन्होंने कहा वैसा हम करते गए। फिर अपने फादर की सोच को हमने फॉलो करते रहे। और उसके बाद हमने क्या किया, वो वीडियो देखने के बाद जब वीडियो में समझा हमने कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा कारण है हम इंसानों की गतिविधियाँ, हमारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं। 23 मेरी एज है, इस 23 मेरी एज है और उस वक्त मेरी थी 18.5 साल एज। और उस वक्त मैंने शुरू किया था, उनको मैंने देखा, तीन सवाल खड़े किए उन्होंने। और तीनों सवालों में से मैं ना वीगनवाद को, अहिंसावाद को समझ पाया, ना मैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को समझ पाया। मैं सिर्फ पेड़ लगाने को समझ पाया कि पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। क्योंकि उस वक्त हमें हमारे होली एंजल स्कूल से 3rd 4th क्लास से पढ़ाया जाता था कि प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को बचाओ। लेकिन वो चीज़ कभी हमारे दिल में बैठी नहीं थी, ना हमने आज तक कभी उस वक्त कभी हमने कभी पेड़ नहीं लगाया था। हमारे वो ज़हन में वो चीज़ कोई टीचर इस तरीके से इमोशनली डाल ही नहीं पाया था जिस तरीके से इमोशनल मैं आज हो जाता हूँ। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, लास्ट ईयर एक होटल के बारे में चर्चा की मैंने। उस होटल के बाहर लगा पेड़ उस व्यक्ति ने काट दिया, उसको मार दिया, तेजाब डाल के 90 साल के बुजुर्ग पेड़ को जान से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। और मैं आपको वही चीज़ बोलते बोलते मैं उस वक्त भावुक हो गया था उस इंटरव्यू में। आपको इस चीज़ का स्मरण होगा। तो ये सब चीज़ें थी, बस उस वक्त शुरू किया, कारवां बढ़ता गया। उन 4 महीनों के अंदर अराउंड 200-250 वृक्ष पूरे कर दिए लगाने में। तब वृक्षों की गिनती थी मन के अंदर कि सिर्फ वृक्ष लगाते जाओ, वृक्ष लगाते जाओ, जिंदा कौन रखेगा उनको। तो उस पर फोकस नहीं किया था इतना ज़्यादा। वो 1 साल, वो कुछ महीनों बाद फोकस किया उस चीज़ पे। परिवार वालों का कैसा सहयोग मिला तुम्हें? सर, परिवार वालों का सहयोग तो नहीं मिला था बिकॉज एक इंडियन पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स की ये सोच रहती है आमतौर पे कि ऑफिसर बन जाए या कोई सरकारी नौकरी मिल जाए इसको, या कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए बहुत स्ट्रांगली, मतलब पैसे होने चाहिए। हर माँ बाप को पैसे का फिक्र होता है, थोड़ा पेरेंट्स को ज़्यादा था। डीमोटिवेशन बहुत मिला घर की ओर से, बहुत ज़्यादा, आज भी मिलता है। लेकिन फिर भी वो शक्ति मेरे साथ है, कुदरत के साथ मैं हूँ। आज सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, तभी खड़ा हूँ। बहुत लोगों ने इस छोटी सी 23 साल की उम्र में, मैं 2 हफ्ते बाद 24 का हो जाऊंगा, और इस 23 साल की उम्र तक पिछले 5 सालों में बहुत कष्ट भोगे। बहुत लोगों ने इतना प्रिविलेज मारने की कोशिश की, एक तरह की मारने की तो नहीं मैं कह सकता। ये 6 फुट 3 इंच कद भगवान की दया से जो मिला है, इसके ऊपर कभी किसी ने हाथ डालने की कोशिश की नहीं। लेकिन फिर भी मतलब तानों से मारने की, ताने भी दिए, हाथापाई कभी किसी ने कोशिश की करने की। हालांकि चलो इतना नहीं, ये मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज वो कभी हुआ नहीं। आमतौर पर प्रशासन से कैसा सहयोग मिलता? प्रशासन चुप है, क्यों? हमेशा जैसे रहता है। क्यों? ये भारत है जी। भारत में जब तक गंदी राजनीति और धर्म का बोलबाला रहेगा तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मतलब नगर कौंसिल से या राजपुरा के किसी भी पॉलिटिकल बंदे से कभी आज तक साहिल शर्मा को कभी कोई मदद नहीं मिली? नहीं, मैं मदद इस तरीके से कह सकता हूँ, मैं इसको वैसे गिनता हूँ कि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि या उनकी मदद की जिनके खिलाफ आप जाते हो? नहीं, चौधरी साहब, बात ऐसी है कि जब हम प्रशासन से, जब हम म्युनिसिपल काउंसिल राजपुरा से सहायता के लिए जाते थे, उस वक्त चलो शुरुआत में इतना विश्वास नहीं था उन्हें। जो प्रधान नगर काउंसिल के हैं शास्त्री जी, उन्हें भी विश्वास नहीं था शुरू में तो हमारे पे। वो कहते हैं ऐसे पागल लड़का आ जाता है कई बार, ठीक है जी। और उन्होंने जब निष्ठा देखी,
उन्होंने फिर हाथ नहीं छोड़ा। मतलब आज भी चलो इतना तो नहीं है मेरे उनके साथ है इतनी अच्छी, लेकिन आप कह सकते हैं कुछ तरीके से वो मेरे पे अंधा विश्वास इस मामले में कर लेते हैं। शास्त्री, नरेंद्र शास्त्री जो प्रधान है, वो आप पे विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं जी। ऐसे मौतबर लोग हैं राजपुरा में, आप हैं, वो है, बहुत लोग हैं जो विश्वास करते हैं, और अंधा विश्वास कि हजारों के पेड़ दिलवा देने म्युनिसिपल काउंसिल की ओर से, हजारों के। कितने पेड़ लगा चुके हो अभी तक आप? अराउंड चौधरी साहब 21,000 पेड़ हो चुके हैं, हो जाएंगे। अभी अगर हमारा एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, अगर वो हो गया तो 800-900 पेड़ लग जाएंगे उसमें। नया अभी बात करें तो 20,000 पेड़ लग चुके हैं, जिनमें से 18,400 के करीब पेड़ जीवित हैं। हर एक पेड़ मेरी जहन में है, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ चल के मेरा हर एक पेड़ गिनवा सकता है। 2,000 पेड़ों का दुख होता है कि वो उनके मर गए, लेकिन उनमें से 500 पेड़ तो मेरी गलती से मरे। और बाकी साहिल, मेरे पेड़ों को एक बात बताओ, जब पीछे लॉकडाउन लगा था जी तो लोगों को ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत पड़ी थी और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, लोग मर रहे थे। क्या लोग नहीं सीखते इस चीज से? चौधरी साहब, इंसान की सोच सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रही है शुरू से, यानी कि खुद का नुकसान इंसान खुद ही करता है। स्मोकिंग के पैकेट पे लिखा भी है, टोबैको के पैकेट पे टोबैको किल्स, सिगरेट के पैकेट पे लिखा भी है स्मोकिंग किल्स, फिर भी हम लेंगे। दिख भी रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है, जलती हुई आग में हमारा धरती जल रही है। बढ़ता पॉल्यूशन यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है, उसके बावजूद हम पटाखे जलाएंगे बिकॉज हमारे धर्म को प्रमोट करना हमने। चाहे वो 2 धर्म की बात हो, चाहे वो 4 धर्म की बात हो, मैं एक धर्म पे फोकस नहीं करता कभी भी, बिकॉज एक धर्म पे बात करूंगा दूसरे धर्म वाले कहेंगे हमारे बारे में क्यों बात नहीं की, उनके बारे में क्यों बात नहीं की। ब्लेम गेम चल रहा है। पराली वालों को बोलो वो कहते हैं पटाखे, पटाखे वालों को बोलो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वालों को बोलो वो कहता है व्हीकुलर एमिशन, कार से निकलने वाला पोल्यूशन। इसलिए हमारे पास चलो बैटरी वाली एक्टिवा है और हम वही यूज करते हैं। इतना प्रिविलेज, मैं आपको बताया वापस से, इतना प्रिविलेज घर मिलने के बावजूद भी, भगवान की इतनी दया होने के बावजूद भी, वो मेरी मर्जी है कि हमने वो चीज चूज की है। बिकॉज एक बढ़ता हुआ समाज हम उसको कह सकते हैं जहां पर लोगों को सोचने विचारने की शक्ति मिली हो कि आपको आज के टाइम पे किस चीज की कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, पर लोग नहीं सोच रहे इस चीज को। चलो, अब ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, हम पंजाबी में बात कर लेंगे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ, ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, खा गया पैसे अफसरां नाल मिल के, कुछ इस तरह दी गल्लां आ रही सी। वो क्या विवाद क्या सीगा? सर एक्चुअली आज से कुछ 4-5 महीने पहले आप भी इस चीज़ का गवाह हो कि वहाँ पे PWD का काम शुरू हुआ था, और उस काम के दौरान उनके ठेकेदार ने बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज मेरा भी ट्रैवल चल रहा था, मैं पौंडीचेरी गया था, मुंबई गया था, इंदौर गया था, मेरा ट्रिप था, तो लंबे मैंने ट्रिप्स लगाए हैं पिछले कुछ 3-4 महीनों के अंदर ही। अभी जस्ट मैं वहाँ से पुणे से वापस आया हूँ जस्ट 2 हफ्ते पहले, फिर अमृतसर जाके आया हूँ, दिल्ली जाके आया हूँ। दिल्ली में हमें चंद्रचूड सर मिले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, DY चंद्रचूड, अभी 6 दिन पहले रिटायर हुए हैं वो। तो उन्होंने हमारे काम को सराहना कि उनकी वाइफ ने हमारे वीडियोज़ देखे हुए थे। ये तो बहुत हमारे लिए खुशकिस्मत बात थी। तो हुआ क्या कि वहां पे काम हुआ था ओवरब्रिज के नीचे, हमारे सारे पौधों को उन्होंने खराब कर दिया, हमारी सारी तारें उखाड़ दी, बैम्बूज वहां पे फेंक फेंक के, और साथ में अंदर गायें घुसी हुई थी, बिकॉज तारे तो है नहीं। कुछ आसपास के मैकेनिक्स ने भी, 1-2 मैकेनिक ने शरारत की थी, उन्होंने हमारी तार उखाड़ी ताकि वो वहां से आराम से गुजर सके, उनके रास्ता मिल जाए उनको गुजरने का। अगर बात करें पास्ट की, तो आज से 3-4 साल पहले से मैं देख रहा हूं कि वहां साइड पे जो बाउंड्री नगर कौंसिल द्वारा लगाई गई थी, सारी की सारी लोहे की बाउंड्री चुपचाप कुछ लोग उठा के लेके जाते रहे, बेचते रहे, और किसी का ध्यान नहीं रहा। आप इस चीज के साक्षी हैं कि लास्ट ईयर जब हमने वहां पे बटरफ्लाई गार्डन्स और ऑक्सीजन पार्क्स बनवाए थे, तो वहां पे हमने खुद के खर्चे पे, NGO के खर्चे पे फेंसिंग लगवाई थी तारों की, वो तारें खराब कर दी गई PWD द्वारा। जब हमारा वो ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ, गायें घूम रही, बैम्बू गिरे हुए, अंदर पानी नहीं मिल पा रहा पौधों को, बिकॉज टैंकर पाइप लाए कहाँ से, अगर लाए तो हमारे पौधे खराब हो गए। मेरा ट्रिप था, मैं यहाँ नहीं था, तो ज्यादा केयर नहीं कर सका, उन्हें समझा नहीं सका, उन्हें धमका नहीं सका, बिकॉज ये चीज करनी पड़ती है। जो समझे ना वो धमकी से मानेगा, जो धमकी से ना माने फिर प्रशासन तो है ही है साथ देने को। घी जो टेढ़ी उंगली से कहते हैं, घी सीधी उंगली से कभी नहीं निकलता। कई बार घी का डब्बा तोड़ना पड़ता है जी, तो कई बार डब्बा तोड़ना पड़ता है। डब्बा अगर घी सच में बाहर निकलना चाहता ही ना हो तो उसको पिघलाना भी पड़ता है कई बार, और कई बार डब्बा ये तोड़ना पड़ता है।
तो हुआ क्या यहाँ पे, मामला ऐसा हुआ कि एक न्यूज रिपोर्टर हैं, वो लांछन लगा रहे हैं बाकी न्यूज रिपोर्टर्स पे पूरे राजपुरा में। उन्होंने, चावला जी ने, पता नहीं क्यों बुद्धि सटक गई है या मानसिक स्थिति उनकी, मेरे को पता लगा था कोई दवाइयां चल रही हैं उनकी शायद, तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उन्होंने उसी वक्त हमारे खिलाफ इंटरव्यूज डालने शुरू कर दिए, ऐसे ऐसे इंटरव्यूज डाले कि हम खुद सोचते रहते। मैं कहा यार ये तो चीज हमने कभी सोची नहीं थी कि हमारे बारे में लोग, व्यक्ति सोच भी सकता है, और जो लोग उसको सुनता हो वो क्या धारणा बनाएगा हमारे बारे में। बिकॉज हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया, हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया, हमने कभी बेईमानी नहीं की, और छोटी सी उम्र में क्या ही बेईमानी कर लेगा एक आम नागरिक। तो वो उसका विवाद खड़ा कर दिया उन्होंने जानबूझ के। जिस दिन हमने वहां पौधे लगवाए, वो जनाब उस दिन भी आ गए, ये देखो कहाँ से ये अरेंज करता है पैसे। शुक्र है उस दिन हम नहीं थे, नहीं तो हम जाके उनके सामने आते, उनको समझाते कि भाई साहब पैसे हम जहां मर्जी से अरेंज कर रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, लोग डोनेशंस कर रहे हैं। अभी एक वीडियो और वायरल हुई है कल भी, किसी लेडी ने कोई इल्जाम लगाए आपके ऊपर, वो क्या विवाद है? चौधरी साहब, सिंपल सी बात है जो आपने वीडियो के शुरुआत में, इस पॉडकास्ट के शुरुआत में की थी, कि जब कोई चंगा काम करे तो जुतियां पहनेंगे। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो ऐसे रोड़े, राह के रोड़े हाथ पर रास्ते में बहुत आते हैं। बहुत इल्जाम लगाए उन्होंने, बहुत इल्जाम लगाए, और मेरे को अचरज में डाल दिया 2 मिनट। किसी लेडी पे हाथ उठाना, किसी लेडी पे, मतलब नहीं, हम ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। पिछले 1-1.5 साल से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। जब से महाराज जी से मिलके आए, प्रेमानंद महाराज जी से हमारी 2 बार मुलाकात हुई है, दोनों बार बात हुई है, एक बार वीडियो भी आया हमारा जिसपे उन्होंने, उनसे हमने प्रश्न किया, उन्होंने हमारे प्रश्न का बड़े 15 मिनट लगा के हमें उत्तर दिया। और हम ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, हम स्त्रियों को हाथ भी नहीं लगाते, और हमारी 23 एज है जी। झूठ क्यों बोल रहे हैं वो भी? एक्चुअली उनके हस्बैंड में नहीं, उनके फादर इन लॉ, वो बहुत तेज व्यक्ति है। और मैं ऑनेस्टली अगर बात करूं, ये फैमिली ऐसी है नहीं, इन्हें ऐसे बनाया जा रहा है। एक ओल्ड राजपुरा के एमसी हैं, वो इनको शय दे रहे हैं, और उनकी शय के अंदर आके अब ये फैमिली बेचारी कानून के दायरे में आके बहुत गंदा फंसेगी, बिकॉज इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और इनको ये भी नहीं पता कि जिस दिन मैं, एक्चुअली हुआ क्या था, ये 3 तारीख को भाई दूज का दिन था, और संडे को मेरे को खबर मिलती है, एक बहुत ही बड़े अच्छे समाज सेवक है राजपुरा में, वो खबर देते हैं कि साहिल जी वहां पेड़ छांटा जा रहा है बहुत गंदे तरीके से। अब चौधरी साहब, अगर हम साइंस की बात करें, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सबसे बड़ा कोर्ट है इन्वायरमेंट का पूरे इंडिया का, जिसकी 4 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट्स में। जब एनजीटी ने ही मना कर दिया कि आप हार्श प्रूनिंग, यानी कि पूरा पेड़ नंगा नहीं कर सकते, तो आप किससे पूछ के कर रहे हो वो पेड़ नंगा? आपके पास परमिशन थी? वो कह रहे हैं परमिशन थी, नगर कौंसिल में कहा था हमने। बस बोलने वाला व्यक्ति बोल लेता है, तो बोलने वाले, एक मिनट दीजिए प्लीज, ये जो दिखा रहे हैं, बोलने वाला व्यक्ति तो कुछ भी बोल लेगा। हमारे पास तथ्य है, इसलिए हम सत्य हैं, और हमारे सत्य के ऊपर ही बात चलती है। और बात मैं सिंपल इतने कहना चाहूंगा, उस दिन हम गए इनके पास, इनको जाके रिक्वेस्ट किया शुरुआत में, मतलब हमने जब हम एक्टिवा रोकी, वीडियो शुरू कर दिया हमने अपने हाथ में, बिकॉज हमें अपनी सेफ्टी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सेफ रहेंगे तो हमारे पेड़ सेफ रहेंगे जो हमने लगाए हैं। एक्टिवा रोकते ही उनके पास गया, वीडियो शुरू था। वीडियो, आप क्या कर रहे हैं, छटाई कौन करवा रहा है? मल्होत्रा साहब कहते हैं हम करवा रहे हैं, वो बिजली में तारे जा रहे हैं। मल्होत्रा साहब आप मजबूर कर रहे हो मेरे को। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आज से बिल्कुल 2.5 साल पहले मेरे पास इनका एक वीडियो है जो मैंने उस वक्त बनाया था। इन्होंने तेजाब डाला था उसी पेड़ के अंदर। जब मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने बोला धुआं निकल रहा है उसमें से। इन्होंने बहुत बोला, हमें टाल मटोल की, घर के अंदर तक लेके गए। वो घर के अंदर बैठे होने का वीडियो भी मेरे पास है, उन्होंने बिठा के लिम्का ऑफर किया, मिठाइयां ऑफर की, बोला इसको रफा दफा कर दो। मैटर बाहर 2-3 लड़के आपके खड़े हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉइल कुछ टेस्ट करने का लेके जा रहे हैं, उनको प्लीज मना कर दो कि वो ऐसे ना करें, और आपसे रिक्वेस्ट है मैम मैटर को रफा दफा कर दो। हमने दवाई डाली मक्खी मारने की। अब मेरे अंदर शंका ये थी कि कौन सी ऐसी मक्खी मारने की दवाई है जो पेड़ के अंदर डाली जाती है, जो पेड़ के अंदर डाली अगर जा रही है तो उसमें से धुआं कैसे निकलेगा? वो तो तेजाब में से निकलता है सिर्फ, उसमें धुआं क्लियरली दिख रहा है मेरे वीडियो में। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हमने दवाई पाई है। अब वो वीडियो हम एज अ प्रूफ हम यूज करेंगे, बिकॉज मेरे को थाने से भी कॉल आया था, मैं वहां पे जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैमिली को वो एमसी भड़का रहा है। उसके बाद जब हमारी बात हुई, इनका बेटा आगे कहता है क्या मजबूर कर रहे हो? जब वो ऐसे एक्शन देंगे तो रिएक्शन तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। रिएक्शन तो होगा। हमने तो रिएक्शन ऐसा नहीं, मैंने बताया हम भावुक हो जाते हैं इन चीजों को लेके। हमने बोला, इन्होंने साथ में ये भी बोला कि वीडियो बंद कर। मैं कहा हमने आगे से नहीं बंद करता,
जो मर्जी कर ली, मैं नहीं बंद करूंगा। तो ऐसे बहस हुई। इनका बेचारा छोटा सा बच्चा था मल्होत्रा, बड़े मल्होत्रा जी के हाथ में, सतपाल जी के हाथ में। वो बच्चा रोने लग गया एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, बच्चे को अंदर ले जाइए, ऐसी अच्छी बात नहीं है। मैं उसका वीडियो बनाने लग गया पेड़ का। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं कि बहुत लेडीज पे असत्य, हाथ उठाया, सबसे बड़ा बुजुर्ग को सबसे बड़ा बोला, असत्य चौधरी घर के साहब, चक्कर लगाता है, ये गुंडागर्दी करता है, ये पैसे मांगता है हमारे से, और गुंडागर्दी। स्कूल में जाके पैसे की मांग कर रहा है। कुछ ऐसी बात भी सामने आई है कि स्कूल में गए हैं, पैसे मांगे, हस्बैंड के दफ्तर गए हैं, ये शिकायतें की हैं। ओके, हाँ मैंने ये भी सुना इनका कल इंटरव्यू में। चौधरी साहब हुआ क्या कि जब इनके हमने बहस हुई, वीडियो बनाया, अब इनको ये बात का पता नहीं सुनते हो वीडियो आप अपने एंटी जो एक्चुअली होती कल है। किसी ने शेयर किया, कल किसी ने शेयर किया था कि अच्छा, आपके खिलाफ डाला गया। अच्छा, हमारे अच्छा। मित्र सज्जन 6-7 मित्र जो साथ में आपके सामने बैठे हुए हैं, हम्म, इन मित्रों ने, इनमें से एक ने शेयर किया था कि वीडियो आपके खिलाफ डाला गया। हम्म। तो हम तो आपको बताया, आश्चर्य रह गए देख के वीडियो कि हमारे खिलाफ क्या वीडियो डाल सकता है। तो सारा कुछ मैटर देखा। तो पहली बात, हम इनसे जब पूछा कि परमिशन दिखाओ, परमिशन है नहीं इनके पास। अब इनको ये भी पता नहीं है कि इनका हमारे पास वो वीडियो पड़ा है जो हमने वीडियो वहां बनाया था पूरे 5-7 मिनट का, जब हम वहां पे खड़े थे। इनको नहीं पता, इसीलिए झूठ बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। और इसका फादर इन लॉ सतपाल मल्होत्रा इस लेडी को आगे कर रहा है, वो विमेन कार्ड खेल रहे हैं। और मेरे को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ इस चीज जान के कि मैं जानता था कि इस देश में लड़कियां तो सुरक्षित नहीं है, औरतें सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैंने इस चीज़ का एहसास कर लिया जब इसने मेरे पे ब्लेम लगाए कि इस देश में लड़के भी सुरक्षित नहीं है। आदमियों पे भी कोई भी कुछ भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकता है। और अगर मेरे पास वो प्रूफ ना होता, आज मैं शायद यहाँ बैठा ना होता, आज मैं सलाखों के पीछे होता। तो आप कोई लीगल कोई करने लगे, कुछ कानूनी कार्रवाई करोगे इनके ऊपर? 3 तारीख को चौधरी साहब, इनको किसी अजय कुमार नाम के व्यक्ति ने सारे सबूतों सहित ये एप्लीकेशन पेश की। म्युनिसिपल काउंसिल को मेल किया ये एप्लीकेशन, और डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को भी मेल किया 3 तारीख को, जिस दिन ये पेड़ की छटाई करवा रहे थे। इस लेडी ने मेरे पे आके और भी घटिया से घटिया इल्जाम लगाए, इस गीता रानी नाम की लेडी ने। हमने इसकी बात सुनी भी नहीं शुरुआत में। तो जब फिर से आई दूसरी तीसरी बात, तो मैंने कहा कौन बोल रहा है? हाँ जी आंटी। मैंने आंटी कहा इनको, मैं इनको दीदी, बिकॉज मेरे को इस फैक्टर इतना जज करना मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैंने आंटी, हाँ जी आंटी। कहते इसने वो भी करा, इसने ये भी करा, इसने वहां भी धमकाया। अरे कोई व्यक्ति पेड़ काटेगा, हम पेड़ों के रक्षक मानते हैं अपने आप को, हम पेड़ों की रक्षा करना जानते हैं। हमें हमारा मन करता है अपने भगवान माना हुआ वृक्षों को कोई मंदिर पर हाथ डाले या कोई गुरुद्वारे पर हाथ डाले, तो कैसे वो धार्मिक लोग खड़े हो जाते हैं, है ना जी। इसीलिए हम चाहते थे कि हम अपने आराध्यों के लिए, जिनको हमने अपना भगवान माना है, वृक्षों के लिए हम खड़े हों। बिकॉज असल में वृक्ष ही पाल रहे हैं। मैं ना हिंदू हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, ना मैं मुसलमान, मैं इंसान हूं। और मैं इंसानियत को फॉलो करते हुए अपने वृक्षों को, अपनी प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। बिकॉज लानत है हम इंसान जात पर, अगर हम इंसान भगवान की दी सुंदर धरती का ही बेड़ा गर्क करने में सफल रह गए हैं, तो फिर लानत है हम लोगों पर। क्या अथॉरिटी है आपके पास ये सब करने की? किसने दी आपको अथॉरिटी? कोई सरकारी आपके पास ओहदा है एज अ सिटीजन सुप्रीम कोर्ट ने हमें राइट दिया है, राइट टू क्लीन एयर का। मतलब अगर मैं ये काम नहीं कर सकता जी, तो आपको ये काम करने के लिए अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, ये लोग कह रहे हैं। अगर मैं ये काम नहीं करना, मैं अपने ऑफिस में एसी में बैठा हूँ कि मेरे सामने पेड़ काटा जा रहा है, मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता, अगर एक बंदा अगर रक्षा कर रहा है तो उससे अथॉरिटी पूछी जा रही है। इतना लोगों की मानसिकता गिर चुकी है। फिर ये कहते हैं कि आप हमारे स्कूल में गए थे। हमें स्कूल में जाने का क्या आवश्यकता है? हमें तो आज आपसे पता लग रहा है। लोग इतने परेशान हो गए, आपसे अथॉरिटी पूछ रहे हैं, हमसे अथॉरिटी पूछ रहे हैं। एक समाज सेवी संस्था रजिस्टर्ड जो चला रहा है उससे अथॉरिटी पूछ रहे हैं और ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो लोगों को कहूंगा, अगर साहिल शर्मा के खिलाफ कोई आपके पास कोई पैसे का सबूत है, लेता हुआ कोई वीडियो है, वो मेरे पास आए, मैं न्यूज़ 18 उल्टा हमारे पास कुछ ऐसे वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें हम लोगों को पैसे उधार दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं हम। ऑफर भी इन द सेंस, किसी रेडी वाले को दे दिए 20-30 रुपए, भैया आपसे कुलचा खाया था उस दिन, आप ये रखो, भैया आपसे उस दिन फ्रूट लिए थे। ये तो कहते हैं रेडी वालों से भी आप पैसे उगराई करते हो। नहीं चौधरी साहब, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चीज राजपुरा में खड़े होकर कह दे। हम 100 लोग यहाँ पे खड़े कर सकते हैं, वो रेडी वाले जिनकी तारीफ हम करते हैं, जिनके मुंह पर हम जाके बोलते हैं भैया जी आपसे रिक्वेस्ट है, ये 1 किलो सेब आपसे लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे को 10 रुपए एक्स्ट्रा लगाने, मैं आपसे कम नहीं करवाऊंगा। मॉल में जाके हम वही पैसा कम करवाते हैं, करवाने की हिम्मत नहीं रखते। मॉल में जाके हम पैसा कम करवाने की हिम्मत नहीं रख पाते रेडी वाले। लेकिन मैं जैसे आपसे लेडीज पैसा कम करवा रही हैं, बार्गेनिंग कर रही हैं, मेरी ऐसी औकात नहीं है। मैं आपको एक्स्ट्रा दुख लगता है कभी अकेले बैठ के, कभी दुखी होते हो भी, यार इतना अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी लातें खींची जा रही हैं, अच्छा काम करने वालों को जुतियां पड़ रही हैं,
और ऐसे इल्ज़ाम्स का सामना करना पड़ रहा है और पेरेंट्स भी कल को बोलते हैं यार क्या कर रहा है तू। एक्चुअली संदीप जी, दुख तो देखिए थोड़ा सा लगा करता था। आज ढीठ हो गए। इतनी ढीठ की बात नहीं है, ढीठ हो गया साहिल। ढीठ की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है। आप अपने सिद्धांतों पर अटक रहो। पुलिस चाहे मारे पीटे ले जाए झूठे इल्जाम में, बिकॉज आपको पता पंजाब पुलिस कैसी है। तो पाणा सिद्धू उसको ले गए, और भी कई लोग हैं उनको ले गए। 3 दिसंबर को हमारे जन्मदिन वाले दिन ही लुधियाना में एक उन्होंने रखा हुआ है, बहुत सारे पर्यावरण समाज सेवियों ने रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा अपना मुहिम चला रहे हैं बुड्ढा दरिया के खिलाफ। उसको कितना पॉल्यूट कर दिया, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके खिलाफ इतने सारे समाज सेवी वहां इकट्ठे होकर जा रहे हैं। हम अपने जन्मदिन के कारण नहीं जा पाएंगे वहां पे, लेकिन वहां पे वो इकट्ठा हो रहे हैं। अब उनके साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, बिकॉज वहां पे लखा सदाना नाम के एक शख्स है, वो भी आ रहे हैं। तो मेरे को अब दुख की चिंता नहीं है, बस फर्क इतना है, ये फालतू इल्जाम लगाने वाले लोग कल खुद अपने इल्जामों में फंस जाएंगे। बिकॉज अब मैं इस चीज को शायद चलो NGT साहिल तक लेके जाऊं। ਤੇ ਸਦਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਦਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਛਟਾਈ कर रहे हैं। जिस दिन संदीप जी मैं इनको रोकने गया था ना, और 5-7 मिनट का वो वीडियो बना के घर पहुंचा था, तो मेरे को उस MC का फोन आया। वो MC ने मुझे एक ही बात बोली कि साहिल जी, मैंने आपकी एक जगह हेल्प की थी, तो आप प्लीज, अब आपने वहां जाना नहीं, वो पेड़ काटने वाले हैं। मैंने टाइम मांग लिया उनसे, मैं कहा आप ऐसा कीजिए, आप मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं शायद बाहर होऊंगा, पीछे से आपने जो करवाना हो करवा दीजिएगा। तो मैंने टाइम मांग लिया, उस दिन पेड़ कटने से बच गया। मैंने उसी वक्त सुधांशु जी महाराज के वहां पे आश्रम में कॉल किया, अरेंजमेंट किया कुछ ना कुछ, बिकॉज करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उनको, बहुत मुश्किल है उनसे मिलना, लेकिन कुदरत मेरे साथ थी, मिले है, रहेगी। मैं आपको फोटो शेयर करूंगा, आप लगाइएगा जरूर। महाराज जी से मिला, शनिवार का दिन था, महाराज जी यूपी गए हुए थे। मैं शनिवार सुबह 3 बजे उठ के सुबह ठंडे पानी से नहा के अपना व्रत धारण करके, व्रत नहीं तोड़ूंगा, या घर आके असफल हो जाऊंगा तो घर आके तोड़ूंगा, सफल हो जाऊंगा तो वहीं पे तोड़ूंगा दिल्ली। तो उस वक्त मैं निकला, उस दिन नहीं मिल पाए, बहुत दुख हुआ। सचखंड अगले दिन की बुक करवानी चाहिए तत्काल में। नेक्स्ट डे 11 बजे फोन, 1:30 बजे की सचखंड थी, 11 बजे फोन आता है उनके आश्रम से कि आज साहिल जी आ जाइए आश्रम में, महाराज जी 3 बजे पहुंच रहे हैं। 3 बजे उनसे मुलाकात हुई, एक फोटोग्राफ हुई, उनसे बेनती किया, उन्होंने बात मानी, कहते कोई बात नहीं मैं देखता हूं। उन्होंने इनको कहा या नहीं कहा पता नहीं, लेकिन शाम तक जब मैंने फोटो शेयर कहा की, होगा तभी बात पहुंच गई ना यहाँ पे। नहीं संदीप जी, शायद उन्होंने नहीं कहा, बिकॉज वो इन मामलों में शायद पढ़ना नहीं चाहते। इतना बड़ा फॉलोअर कहता है सतपाल मल्होत्रा अपने आप को महाराज सुधांशु जी का, और ये नीच हरकत 2.5 साल पहले का वीडियो मेरे पास जो पड़ा है तेजाब डालने का, और अब फिर कोशिश की जा रही है उस पेड़ को मारने की। सिंपल साइंस है संदीप जी, ये कह रहे हैं कि बिजली के तारों में पेड़ जा रहा था, तो जो टहनियां बिजली के तारों में जा रही थी, केवल वो टहनियों को काटना चाहिए था, छाटना चाहिए था, वो भी इनके पास अथॉरिटी नहीं थी। इन्होंने नगर कौंसिल को लिख के देते, एप्लीकेशन पे नंबर लगवा के आते, और उसके बाद जाके नगर कौंसिल के बंदे आते, वो खुद आके उस पेड़ को छाट के जाते, वो भी लिमिट में। हम पेड़ की छतरी नहीं खराब कर सकते, बिकॉज कानून ने ये चीज रखी हुई है। हम नहीं कह रहे, साहिल शर्मा कुछ नहीं कह रहा, कानून ये चीज कह रहा है, और हम सिर्फ वो माड़े मोटे कमजोर कानूनों को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इन्होंने पेड़ छाटना भी था उस तरफ से, बाकी 3 तरफ से इनको पेड़ छाटने की क्या आवश्यकता थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने ये भी कहा कि उसके ऊपर मधुमक्खियां थी, मधुमक्खियां तो पेड़ की जड़ में है, पेड़ के तने के अंदर है, इन्होंने मधुमक्खियों का कारण बना के पेड़ क्यों छटवाया, बहुत बड़ा सवाल इन पे खड़ा होता है। इन्होंने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं हमारे पर, जिनके हमारे पास प्रूफ है। नगर कौंसिल को विकास चौधरी जी उस दिन इनके पास पहुंचे, उन्होंने लकड़ी इनसे जब्त की, और ये देखिए अभी 6 दिन पहले उन्होंने ये नोटिस भेजा इनको कि आपने किससे पूछ के पेड़ छटवाया। नगर कौंसिल के विकास चौधरी मूर्ख तो नहीं है, वो भी समझदार व्यक्ति हैं, बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उनके खिलाफ कितने धरने लगते रहे हैं, फिर भी वो अटल खड़े हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही इन नगर कौंसिल की तरफ से ये चीज ईओ साहब साइन करवा के भेजी, नोटिस भेजा कि आपके खिलाफ शिकायत भी आई है और मैंने खुद आपसे लकड़ी जब्त की है। आपने किसकी अथॉरिटी से आपने वो पेड़ छटवाया? बहुत बहुत बड़े कानून है, लेकिन लोग फॉलो नहीं कर रहे। ਚਲੋ ਸਾਹਿਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ, ਜਦ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੇੜ ਲਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਇਹ ਪੇੜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ NGO ਹੈ
ਲੋਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਾ ਭਰਾ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।